Hello everyone, this is Assistant Professor Mansi Samant from DTCS College of Commerce. I'll be teaching you all economics. So today we'll talk about demand. The topics for today's session are as follows: concept of demand, reasons for demand sloping downwards, exceptions to the law of demand, types of goods which we'll be covering, inferior and given goods. As you can see in the screen, this is first Indian economist, widely known as Kautilya, Chanakya, Vishnugupta. According to him, accumulated wealth is saved by spending, just as incoming fresh water is saved by letting out the stagnant water. Before diving to what exactly demand is, let us understand how beautiful our subject economics is all about. Economics is a study of how people use limited resources to meet unlimited wants. It helps us to understand the choices we make in daily lives, business and government. अब इसका मतलब क्या है? Human wants are unlimited. Okay? For that means कि हमें basically unlimited wants को satisfy करना है with a limited amount of resources. तो उसको हम कैसे करेंगे? Through our efficiency. ठीक है? अगर मैं producer हूँ तो मैं क्या करूँगी? I try to minimize the cost and maximize the output. On the other hand, अगर मैं consumer हूँ तो what I'll try is I'll try to spend less and use maximum amount of goods and consume maximum amount of goods. The demand concept was given by Sir Alfred Marshall in his book Principle of Economics. According to him, the most valuable of all the capital is that invested in human beings. As you can see his photo, this is his book famously known as Principle of Economics. So now let's see what exactly is law of demand. Demand refers to the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. इसका मतलब क्या है basically? अगर एक इंसान को for example मुझे अगर if my monthly salary is 20,000 rupees और मुझे Lamborghini चाहिए तो I am willing to pay for it. पर क्या मेरे पास एबिलिटी है टू पे फॉर इट? नो. दैट मीन्स इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिमांड. डिमांड कंसिस्ट ऑफ विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे. व्हेन इट इज विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे, इट इज कॉल्ड एज डिमांड फॉर अ गुड. इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड reduces, as price reduces quantity demanded increases. Demand slope. As you can see, demand slope is always sloping towards downwards. On x-axis we have quantity demanded and on y-axis we have price. सबसे पहले अगर हमारा प्राइस 60 रुपीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट है तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है 400 है. As soon as price decreases, the quantity demanded increases up to 800. क्यों? Because it has inverse relationship. As soon as price decreases, quantity demanded increases. As price increases, quantity demanded decreases. Okay. Now you'll be asking, ma'am, there is a difference between quantity demanded and demand? Yes, definitely. Quantity demanded changes only due to price changes. मतलब जैसे price change होगा तभी quantity demanded गिरेगा या फिर बदलेगा. Okay. But on the other hand, demand changes every other thing except price. मतलब बिकॉज ऑफ योर इनकम या फिर टेस्ट, तो जैसे वो चेंज होगा वैसे तुम्हारा डिमांड चेंज होगा. ओके. नेक्स्ट वी हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का. अब डिमांड स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके पीछे 3 रीजंस है. सबसे पहले है इनकम इफेक्ट, देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड देन वी हैव लॉ ऑफ DMU. DMU का फुल फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट कब होता है? जब प्राइस एक प्रोडक्ट का गिरेगा तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी बचेगा जिससे तुम मनी से कुछ और चीज़ बाय कर सकते हो. दैट मीन्स द परचेसिंग पावर ऑफ योर मनी इंक्रीजेस, जिससे क्या होता है? डिमांड भी बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर चाय का प्राइस गिर गया, सो पहले फॉर एग्जाम्पल अगर चाय का प्राइस 50 रुपीज़ था, कुछ रीज़न के वजह से चाय का प्राइस हो गया 30 रुपीज़. सो दैट मीन्स यू हैव 20 रुपीज़ का बफर. व्हाट विल यू डू? यू विल यूज़ दैट 20 रुपीज़ टू स्पेंड समवेयर एल्स.
दैट मीन्स वो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा मनी तुम्हारे पास बढ़ गया उसको बोलेंगे परचेसिव पावर, वो इंक्रीज होने की वजह से डिमांड चेंज हो जाता है। ओके, देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों होता है? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस द गुड्स बिकम चीपर एज कंपेयर टू अदर्स एंड इंक्रीज इन डिमांड। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मतलब जब तुम्हारे कॉम्पिटिटिव गुड्स का उसका अगर प्राइस चेंज होता है, उसका अगर प्राइस गिरेगा तो तुम्हारे पास इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टी और कॉफ़ी है, टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सारे कस्टमर्स विल गो टू कॉफ़ी, तो उससे कॉफ़ी का फ़ायदा होगा, उसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ DMU। DMU का फुल फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसेंस फर्स्ट लॉ। ये कब होता है? जब प्राइस गिरेगा तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी। दैट मीन्स जब तुम एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलता है उसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट डिक्रीजेस एज मोर इज कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी हंग्री और मुझे फिर किसी ने मुझे एक एप्पल दे दिया, आई विल बी हैप्पीली ईटिंग दैट एप्पल, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया। बट देन अगेन किसी ने मुझे 5 एप्पल दे दिए, तो क्या मेरा फर्स्ट एप्पल खाने का सेटिस्फैक्शन और जो 5th एप्पल खाने का सेटिस्फैक्शन सेम होगा? डेफिनेटली नॉट। फर्स्ट एप्पल खाने से मैं बहुत खुश हूँ, पर जब तक मैं 5th एप्पल तक पहुँच जाऊँगी मेरी यूटिलिटी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई है, तो क्या होगा, मेरा यूटिलिटी डिमिनिश का मतलब है गिरेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट जितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन में करती जाऊँगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, मतलब क्या, यूटिलिटी गिरते जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? यूजुअली डिमांड का हमारा फॉर्मूला क्या है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, राइट? बट इसमें क्या होता है, हायर द प्राइस हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड। इसका मतलब जो नॉर्मल हमारा क्वांटिटी डिमांड का जो फॉर्मूला है दैट हैज़ इन्वर्स रिलेशनशिप, बट एक्सेप्शन में इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ते जाता है, जितना प्राइस कम होगा उतना तुम्हारा डिमांड भी गिरेगा। सबसे पहले वी हैव वेबलिन इफेक्ट। अब वेबलिन इफेक्ट का मतलब क्या है? व्हेन हायर प्राइसेस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड rather than डिक्रीज डिमांड। एग्जाम्पल प्रेस्टीज गुड। इसका मतलब क्या है? जितना प्राइस बढ़ेगा प्रेस्टीज गुड्स का, प्रेस्टीज गुड्स मतलब क्या, बेसिकली गुड्स जो तुम्हें स्टेट सिंबल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटन का वॉच या रोलेक्स का वॉच, इसमें क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका स्टेटस, उसका प्रेस्टीज इंक्रीज होता है, तो इसके लिए जो कंज्यूमर्स है वो गुड्स लेते हैं, उसको हम बोलेंगे वेबलिन्स गुड। जिससे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वी हैव गिफिन्स गुड। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गिफिन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड मीट। सर रॉबर्ट गिफिन ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जब प्राइजेस ऑफ ब्रेड एंड मीट वो सेम थे तो दोनों जो कस्टमर्स यूज टू ईट बोथ, बट ऑल ऑफ सडन जब प्राइजेस ऑफ ब्रेड गिर गए या फिर प्राइस कम हो गया तो टेक्निकली डिमांड हैज़ टू इंक्रीज, बट नहीं, लोगों ने क्या किया, बिकॉज इट वॉज चीप, लोगों ने ब्रेड के बदले मीट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वी हैव बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब है इंडिविजुअल डिमांड कमोडिटीज बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो। बैंडवैगन का मतलब है ग्रुप। जब ग्रुप का कुछ ट्रेंड होता है और वो जब ट्रेंड तुम फॉलो करते हो उसको बोलते हैं बैंडवैगन। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे फ्रेंड ने रिप जीन्स पहनी है तो तुम भी बोलोगे मुझे रिप जीन्स पहनने हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड ने स्नीकर्स पहना है, स्नीकर्स यूज़ किया, तो तुम भी बोलोगे मुझे स्नीकर्स पहनना है। इसका मतलब क्या, जब पूरा का पूरा ग्रुप एक चीज़ ट्रेंड को फॉलो करता है और तो तुम उस चीज़ को फॉलो करते हो, उसको बोलेंगे हम बैंडवैगन इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव स्नोब इफेक्ट। द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस as fewer people own or use it. Example limited edition. अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग। अब मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है तो इसका मतलब क्या, जितना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कम है उसकी उतनी प्राइस ज़्यादा है क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा है। वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ डायमंड, क्योंकि डायमंड बहुत कम मिलते हैं इसके लिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट in which we'll be seeing
डिफरेंस बिटवीन इन्फीरियर एंड गिवन गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जिसका प्राइस बढ़ने से तुम उनका कंजम्पशन कम करते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में डिफरेंस है। गिवन गुड्स, डिमांड गोज अप विद राइज इन प्राइस। अब इसका मतलब क्या है गिवन गुड्स का? जब प्राइस बढ़ते जाता है तो तुम्हारा डिमांड भी बढ़ेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड इन्फीरियर गुड्स में डिमांड फॉल्स विद राइज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है? बिकॉज दीज आर इन्फीरियर गुड्स, ये तुम प्रेफर नहीं करोगे, तो क्या हो जाता है जब इसका प्राइस बढ़ जाता है तो तुम उसका कंजम्पशन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या तुम्हें वो इतना अच्छा नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट वी हैव गिवन गुड्स में डिमांड कर्व पॉजिटिव इन स्लोप। ऑन द अदर हैंड ऑन इन्फीरियर गुड वी हैव डिमांड कर्व इन नेगेटिवली स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब क्या? बेसिकली अपवर्ड्स राइजिंग, जिसका मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ते जाएगा। ऑन द अदर हैंड इन्फीरियर गुड में जितना प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा डिमांड कम होते जाएगा। सो वी बेसिकली हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन गिवन गुड्स we have price effect as positive, on the other hand in inferior good we have price effect as negative। इसका मतलब क्या है? इन गिवन गुड्स जितना प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है? जितना बढ़ते जाएगा उतना दूसरा भी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। ऑन दी अदर हैंड इन्फीरियर गुड में जितना प्राइस तुम्हारा बढ़ेगा तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड वो कम होते जाएगा, सो इट हैज़ इनवर्स रिलेशन, इसके लिए वो नेगेटिव है। नेक्स्ट वी हैव गिवन गुड्स। इन गिवन गुड्स वी हैव income effect to be negative and in inferior good we have income effect to be negative as well। इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम नेगेटिव रिलेशनशिप इन बोथ द केसेस। ओके व्यूअर्स, सो इन नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग थियोरीज ऑफ डिमांड and elasticity of demand. Thank you so much.